Good morning, good afternoon, good noon, students. We are starting with a new chapter of statistics plus one economics, measures of correlation. ये statistics का एक बहुत important tool है जिससे हमें दो variables का relation पता लगता है. जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी. नेगेटिव, डिमांड बढ़ेगी, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो क्रैकर्स महंगे हो जाते हैं, प्राइस भी बढ़ जाता है. पॉजिटिव मतलब देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. एक का कॉज, सेकंड इज द इफेक्ट. इस चैप्टर में हम दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन निकालेंगे क्वांटिटेटिव टर्म में. मतलब दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं और किस नंबर से, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. प्लीज ओपन पेज नंबर 171. पेज 171, measures of correlation. Correlation studies and measures the direction and intensity of relationship between two variables. Intensity किस लेवल तक वो correlated है, in which change in the value of one variable is associated with a change in the value of the other variable. There is a change in one, affect the other. For example, as the summer heat rises, hill stations are crowded with more and more visitors. गर्मी ज़्यादा होती है तो हिल स्टेशंस के होटल्स की डिमांड बढ़ जाती है. आइसक्रीम सेल्स ऑल्सो इंक्रीज. Thus, the rise in temperature is correlated with the increase in the number of visitors to hill stations and the sale of ice cream. Positive relation. Correlation and causation. Correlation means how the two variables are correlated. Causation means एक चीज से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है. Correlation only points out the changes that occur in a given variable when some other variable changes. However, it does not reveal anything about the cause and effect relationship. प्राइस और डिमांड में कोरिलेशन फॉर एग्जांपल 0.8 है, बट इट डज नॉट मीन कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी या डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा. कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हमें नहीं पता लगता है. So if two variables are correlated, it does not mean that change is one is the cause of the change of the others. For any two correlated events, A and B, the following relationship are possible. अगर A और B correlated है, series A and series B. Series A shows the number of hours a student study, और series B number of marks he gets or she gets. Series A है कि बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है और series B है कि वो कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है. अगर दोनों का कोरिलेशन चेक किया जाए तो क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन सकता है. 1. A causes B, which is also referred as direct causation. For example, fall in price of mobile have led to rise in demand. मोबाइल का प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा. It's a direct cause and effect relation. B causes A, which is also referred to the reverse causation. For example, demand for mobile phone rises, its price also rise. मोबाइल फोन्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा. दैट इज द रिवर्स कॉजेशन. A and B are consequences of a common cause but do not cause each other. दोनों दो चीजें एक ही चीज पे डिपेंडेंट हैं बट आपस में वो डिपेंडेंट नहीं है. For example, during winter sale of woolen clothes and electric heaters both increase due to fall in temperature. अगर टेम्परेचर नीचे जाता है, विंटर ज़्यादा है, तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक हीटर्स की डिमांड बढ़ेगी. बट हीटर्स और क्लोथ्स आपस में रिलेटेड नहीं है. A causes B and B causes A, which is also referred as cyclic causation. For example, as national income rises, the level of AD also rise and vice versa. मीन्स अगर किसी कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो उस कंट्री की डिमांड बढ़ेगी, और अगर कंट्री की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी. दैट इज द साइक्लिक कॉजेशन. इफ वन थिंग हैपन्स द सेकंड विल फॉलो, इफ द सेकंड थिंग हैपन द फर्स्ट फॉलो. अगर कंट्री गरीब हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है तो पॉवर्टी आएगी. A causes C which causes B.
It is also referred as indirect causation. For example, the glamour and money associated with cricket attract many youngsters towards it and other sports suffer. A से C होते हैं और C से B होते हैं. Like, आपको एडवर्टीजमेंट्स के अंदर क्रिकेटर्स नज़र आते हैं. अब आपको एडवर्टीजमेंट्स के अंदर जो क्रिकेटर्स नज़र आते हैं वो क्रिकेटर की वजह से एडवर्टीजमेंट नहीं मिलती है. They earn good money, they go to gym, they have a good physique, they win matches and then they get the advertisement. If a person is not good in cricket, he'll not get the advertisement. There is no connection between A and B, which is also referred by to chance correlation. दो चीज़ें रिलेटेड नहीं है बट बाई चांस उनका कोरिलेशन आ जाए. जैसे कि कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आइसक्रीम ईटन एंड मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन. हमने दो बच्चों के मार्क्स कंप्यूट किए और देखा कि उन्हें आइसक्रीम कितनी वो कंज्यूम करते हैं पर मंथ बेसिस और उनकी कोरिलेशन निकल गई पॉजिटिव. मतलब जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा, या नेगेटिव जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं वो आइसक्रीम कम खा रहा है. ऐसा नहीं है बट बाई चांस कोरिलेशन कंप्यूट हो सकता है इनका. तो इसे हम क्या देते हैं स्टार्ट कॉमन सेंस. दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन तभी निकालो जब आपको पता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होगा. So students should remember that correlation measures covariation and not causation. Correlation does not imply cause and effect relation. The knowledge only gives us an idea of the direction and intensity of change in a variable when the correlated variable changes. While commenting upon the cause of relationship, the student should use their common sense. I think I'm clear with this. अब आगे प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं. We have three methods. We have three methods to compute correlation. The first is Karl Pearson's. The second is scatter diagram. And the third is Spearman's rank correlation. Most of the time Karl Pearson has been asked. We'll start with Karl Pearson. Karl Pearson एक स्टैटिस्टिक इकोनॉमिस्ट था जिसने हमें कोरिलेशन को कंप्यूट करना सिखाया. We say it Karl Pearson's coefficient of correlation or just Karl Pearson's. We have three methods under this. The first method is direct, जिसे हम क्या देते हैं एक्चुअल मीन या एक्चुअल वैल्यू. The second is indirect. This is assumed mean. And the third is step deviation. These are the three methods under Karl Pearson's coefficient of correlation, and we are starting with the direct method. Kindly open page number 174, page 174. The scatter diagram method जो भी हमने करना है indicates the director of correlation but does not give any exact value of magnitude. A mathematical method of measuring the magnitude of linear relationship between two statistical series was given by British
statistician Carl Pearson. The correlation coefficient between two variable denotes as RXY. Correlation को हम ऐसे लिखते हैं RXY. R is correlation, XY. X is the first series, Y is the second series. That means Y is dependent on X. Is the ratio of covariance between X and Y and the product of standard deviation of X and Y. इसका फॉर्मूला था कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू वाई. बट इसको हमने अब शॉर्ट डिफरेंट डेरिवेशंस करके उसके 3 मेथड्स निकाले. मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. द फॉर्मूला इज R is equal to sigma xy upon under root of sigma x square into sigma y square. This is the formula. And what is small x? Where x is x minus x mean and y is y minus y mean. Small x का मतलब होता है x mean, x minus x mean, और small y का मतलब होता है y minus y mean. इसीलिए इसे एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं. सी, डायरेक्ट मेथड इज नोन एज एक्चुअल मीन मेथड बिकॉज हमें एक्चुअल मीन्स कंप्यूट करने होते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन. राइट डाउन द क्वेश्चन. कंप्यूट R, that is correlation, using Carl Pearson method. X we have 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. And Y 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. देखिए x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है. x और y दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब x बढ़ने से y बढ़ रहा है. इसका मतलब, पर ऐसा भी हो सकता है y बढ़ने से x बढ़ रहा हो. आंसर पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि x और y दोनों इंक्रीज कर रहे हैं. बट किस इंटेंसिटी से इंक्रीज कर रहे हैं ये कंप्यूट करना होगा यूजिंग दिस फार्मूला. आंसर पॉजिटिव में आएगा, ये श्योर हो चुके हैं. Solution. X 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Y 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Small x. X minus x mean. X minus x mean. How to find x mean? Sigma x upon n. Sigma x 12 plus 15 plus 18 plus 21 plus 24 plus 27 plus 30. 147. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 147 divided by n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 147 divided by 7 is 21. So the mean is 21. 12 minus 21 minus 9. 15 minus 21 minus 6. 18 minus 21 minus 3, 0 plus 3 plus 6 plus 9. इसका समेशन 0 ही आएगा. हमने मीन की प्रॉपर्टी की हुई है. द डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0. नाउ व्हाट इज y मीन? सिग्मा y अपॉन n. 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 is 84.
is 12, I guess. Yes, 12. Small y. Y minus y mean. 6 minus 12, 8 minus 12, 10 minus 12, 12 minus 12, 14 minus 12, 16 minus 12, 18 minus 12. The summation would be 0, need not compute. The formula says sigma xy. Sigma xy मतलब x को y से मल्टीप्लाई करना है. -9 minus 6, minus minus plus 9 6 54, 24 6 0 6 24 54. So the summation of xy is 168. अगर आप फॉर्मूले में ध्यान दें, वहां लिखे r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, तो वो तो आ गया 168. ना एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये नहीं स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नो. स्क्वायर करके रूट नहीं लेना, स्क्वायर करके समेशन लेके अंडर रूट करना है. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 81 36 9 0 9 36 81. Summation 81 plus 36 plus 9 126. Now we'll do same for y square. This 36 24 no 6 6 square 36 4 का square is 16 4 0 4 16 36. So the total is 112. स्क्वायर का अंडर रूट, ये नहीं सोचना स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे. स्क्वायर करके समेशन लेके अब अंडर रूट कंप्यूट करेंगे. नाउ r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. Putting into 168 divided by under root of 126 into 112. 168 under root of 126 into 112 is 14112. 126 into 112. Have a look on that. एक बार कैलकुलेशंस वेरीफाई कीजिए. This is 252. And hence this is 252, right? 252 into 112 is 22,224. So हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के अंदर है हमारे पास एक्चुअल मीन एंड एक्चुअल वैल्यू. दिस इज एक्चुअल मीन बिकॉज हमने एक्स मीन और वाई मीन लेके डिडक्शन की है. 168 डिवाइडेड बाय 168. पॉजिटिव रूट लेनी है, नेगेटिव रूट नहीं लेनी. आई रिपीट, 28 to 24 का जो अंडर रूट रहता है वो होता है 168. पॉजिटिव रूट लेनी है, नेगेटिव रूट नहीं लेनी है. 168 by 168 is +1 और नीचे आंसर लिखेंगे
x and y are perfectly positive correlated. कोरिलेशन कभी 1 से बड़ा नहीं आता और -1 से छोटा नहीं आता. कोरिलेशन हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है. आई रिपीट, कोरिलेशन -1 और 1 के बीच में रहता है. अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है या -1 से छोटा आ रहा है, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो आपने सम गलत सॉल्व की है, कैलकुलेशंस आपकी मिस्टेक है. +1 का मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन, हाईली डायरेक्ट पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड. आई विल एक्सप्लेन द डिग्रीज, मैं आपको डिग्रीज भी एक्सप्लेन करूंगा, बट यू नीड टू वेट सम टाइम फॉर दैट. गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज कंप्लीट दैट, नोट डाउन. इससे हमारा डायरेक्ट मेथड कंप्लीट रहेगा. सॉल्यूशन पार्ट पे फोकस कीजिए, सभी अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए. दिस इज योर 6 मार्कर क्वेश्चन. Thirty seconds more, students. ओके, ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, ये फॉर्मूला फेल हो जाता है अगर मीन पॉइंट्स में आ जाए. फेल नहीं होता, बट उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर आपका मीन 20.8 आ जाता तो आप सब में 20.8 माइनस करेंगे, पहली प्रॉब्लम. फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर समेशन करके रूट करेंगे. तो आप देखेंगे जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी और मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाएगा. तो डायरेक्ट मेथड के अंदर ही हमारे पास एक और फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला. स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है फॉर्मूला लर्न करना, बट जब 3-4 क्वेश्चन हम अपने लेवल पे कर लेते हैं तो ये इतना टेक्निकल नहीं है. डायरेक्ट मेथड का दूसरा फॉर्मूला ये है, मैंने पोर्शन रब कर दिया जहां पे मैंने डायरेक्ट के ब्रैकेट में लिखा था एक्चुअल मीन एंड एक्चुअल वैल्यू मेथड. दिस इज एक्चुअल मीन मेथड एंड दिस इज एक्चुअल वैल्यू मेथड. अगर आप डिफरेंस देखेंगे, दिस इज स्मॉल x, दिस इज कैपिटल X, दिस इज स्मॉल y, दिस इज कैपिटल Y. आप डिफरेंस देख सकते हैं. नोट डाउन द फॉर्मूला नंबर 2. और अभी हमारा डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है. दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ओनली. बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, आई होप आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया. इट इज n टाइम्स कैपिटल X Y, मतलब x और y को मल्टीप्लाई करके समेशन लेंगे, माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y. दैट मीन्स कैपिटल X इंटू कैपिटल Y का समेशन होल अपॉन
the n times sigma x square minus sigma x का whole square and the under root of n times sigma y square minus sigma y का whole square. We are doing the same question but with different method. आंसर हमें पहले ही पता है कि +1 आएगा. Starting with the solution now. ना सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे जैसे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है. हमारा फोकस फॉर्मूले पे रहेगा. ये देखिए एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है फिर सिग्मा निकालना है. तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते हैं. एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं. 12 इंटू 6 72, 15 इंटू 8 120, 18 इंटू 10 180, 21 into 12 252, 24 into 14 336, 27 into 16 432 and 30 into 18 540. जैसा कि फॉर्मूला में है n टाइम्स सिग्मा एक्स वाई, तो मैंने एक्स वाई कर लिए. We'll do the sigma later on. Now we have sigma x, sigma y. X हमारे पास है, y हमारे पास है. Whole upon under root of n times x square. Let's find x square. 12 square 144, 15 square 225, 18 square 324, 21 square 441, 24 square 576, 27 square 729 and 30 square is 900. Now y square, 6 square 36, 8 square 64, 10 square 100, 12 144, 14 196, 16 256, 18 324. The total of x, sigma x is 147. Sigma y is 84. XY sigma is 1932. X square is 3339. I'll verify once again. And y square is 1120.
sigma x is 147, sigma x square is 339, sigma y is 84, sigma y square is 1120 and sigma xy is 1932. Now let's put it into the formula. R is equal to n times sigma xy minus sigma x into sigma y whole upon under root of n times sigma x square minus sigma x whole square under root of n sigma y square brackets y sigma y का whole square. ओके कई टीचर्स या कई बुक्स में ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा. उसमें क्या होता है, n यहाँ पर आ जाता है, मतलब दोनों को n से डिवाइड कर दो, न्यूमिनेटर को n से डिवाइड कर दो तो वो बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n, लाइक दिस. सिर्फ समझ लीजिए कई बुक्स में कई टीचर्स ये फॉर्मूला करवाते हैं. n divided by both sides. Got it? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ऐसे ही y के साथ हो जाएगा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाना. हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? बिकॉज डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है, मल्टीप्लाई करना इजी रहता है. वैसे ये बहुत ही कैलकुलेटिव है. कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, इसमें बहुत कैलकुलेशंस रहती हैं एंड ज़्यादा कैलकुलेशंस ऑलरेडी हैं. टू अवॉइड दैट डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं. n 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 1932 माइनस 147 मल्टीप्लाई बाय 84 whole upon 7 into 3339 minus 147 का स्क्वायर अंडर रूट 7 times 1120 minus 84 का स्क्वायर. सेवन इंटू 1932 13524 माइनस 147 इंटू 84 12348 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 times 3339 is 23,373 माइनस 147 का स्क्वायर 21,609 इंटू 7 times 1120 7840 माइनस 84 स्क्वायर 7056. अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है तो आपने सम गलत किया है, बिकॉज कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो पाएंगी. अंडर रूट नेगेटिव इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्टिफिशियल नंबर आयोटा, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. 13524 minus 12348 1176 whole upon under root of 23373 minus 21609 1764 under root of 7840 minus 7056 784 under root. Perfect. 1176 1764 का अंडर रूट इज 42. 40 कैसे पता चला? यू नीड टू सॉल्व द अंडर रूट. अंडर रूट आपको आती है सॉल्व करनी. अगर अंडर रूट नहीं आती सॉल्व करनी तो 1764 है,
1600 से बड़ा है, 40 से बड़ा आंसर रहेगा 784. लेट्स फाइंड आउट अ ट्रिक. 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900. ये है 784. 784 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 20 और 30 के बीच में 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900. सो द आंसर विल लाई इन बिटवीन. 26 पीछे 6 है तो स्क्वायर में पीछे 36 आएगा. 27, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर वट एवर पर पीछे 6 आ जाएगा, 6 6 36. 27 स्क्वायर वट एवर पर पीछे 9 आएगा, 7 7 49. 28 स्क्वायर समथिंग 4 पीछे 4 आएगा. 29 स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा. 30 स्क्वायर 900. So I'll just take 28. I'll just take 28 because I know it is 28. You need to solve it as you know how to compute the root. 1176 divided by 42 into 28, 1176. The answer is plus 1. X and Y are perfectly positive, correlated. नाउ आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं. आंसर +1 कैसे आना था, मुझे कैसे पता था आंसर +1 आना है. स्पीड अप, पहले 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, नोट डाउन कीजिए. टेक 1 मिनट, नोट डाउन कीजिए आंसर को. देन आई लेट यू नो द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन. और कोरिलेशन के मेजॉरिटी टाइम्स वो ट्रिक लग जाती है. Thirty more seconds. Okay, now see. x बढ़ रहा है 3 से 3 3 3 3 3. y बढ़ रहा है 2 2 2 2 2 2. x और y दोनों बढ़ रहे हैं तो आंसर आएगा प्लस में. ये 3 से जंप कर रहा है, ये 2 से जंप कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम है. जैसे इसके 3 यूनिट्स बढ़ेंगे इसके 2 यूनिट्स बढ़ेंगे, जैसे इसके 3 यूनिट्स बढ़ेंगे इसके 2 यूनिट्स बढ़ेंगे, इसलिए आंसर 1 आया. अगर ये 3 से बढ़ता है ये 2 से, ये 3 से बढ़ता है ये 1 से, ये 3 से बढ़ता है ये 2 से, ये 3 से बढ़ता है ये 1 से, तो आंसर 1 के पास पहुंचता. 0.99, 0.98, 0.92. एक बार हमें सम देख के आइडिया हो जाता है आंसर किसके पास पहुंचेगा. बट टू गेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. नाउ डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने 2 फॉर्मूले किए हैं. ये होता है एक्चुअल मीन मेथड और ये होता है एक्चुअल वैल्यू मेथड. दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट प्रेफर्ड अगर मीन पॉइंट्स में आए, एंड दिस इज नॉट प्रेफर्ड जब वैल्यूज बहुत बड़ी हो. क्योंकि अगर वैल्यू 200 होगी यू नीड टू फाइंड 200 का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर, 196 इंटू 164 बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशंस. एंड हेंस इन दोनों की अपनी एक लिमिटेशन है. लिखिए द फर्स्ट फॉर्मूला, नीचे नोट लिखिए. द फर्स्ट फॉर्मूला represents actual mean method, है डायरेक्ट मेथड ही. एक्चुअल मीन मेथड कॉमा
which is not preferred when the mean are in fractions, which is not preferred, which is not preferred if means are in fractions, डेसिमल्स। जब मीन डेसिमल में होता है तब हम ये अप्लाई नहीं करते। 2 कर सकते हैं, हम करते नहीं, कैलकुलेशंस टेक्निकल हो जाती हैं। 2 दिस द सेकंड फार्मूला represents actual value method. The second formula represents actual value method, comma, which is not preferred, which is not preferred when the values in the series are too large, when the values in the series are too large, full stop. We are done with what is correlation, what are its methods. Methods में first is Karl-Pearson method. Karl-Pearson method के अंदर we have 3: direct, shortcut, step deviation. Direct method के अंदर we have actual mean, actual value. So I am giving you one question for practice. जो मैंने आज करवाया है उसका एक अभी आप प्रैक्टिस करेंगे. देन इन लेक्चर 2 वी विल डू शॉर्टकट मेथड, assumed value method. The question for practice is page number 174, page number 174, example number 2, page 174, example number 2. आप इसे अपने मेथड से करेंगे, डोंट कंसीडर दिस, इनके सॉल्यूशन को इग्नोर करेंगे, आप अपने मेथड से करेंगे. ये आपका जो आंसर रहेगा वो दोनों मेथड से सेम आएगा. आप ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करेंगे क्योंकि जो मीन है वो पॉइंट्स में नहीं आ रहा और एक्चुअल वैल्यूज भी ज़्यादा बड़ी नहीं है. सो एग्जाम्पल नंबर 2 आप दोनों फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व करेंगे. जो लास्ट में आंसर आएगा वो हाई डिग्री है कि लो डिग्री है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. सी एवरीवन, ये जो लाइन लिखनी होती है ये मैंडेटरी होती है, बट अभी के लिए आप अवॉइड करेंगे क्योंकि मैं लेक्चर 2 या 3 में समझाऊंगा द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. फॉर द टाइम बीइंग you just apply the formula and get the answer and verify the both will give the right answer, same answer. Lecture 2 will do the shortcut method. Bye bye, take care, God bless.